इंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, उसका वर्किंग क्या है, देन डबल फील्ड रिवॉल्विंग फ्रेम, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। Single phase induction motor. We use this single phase power system more widely than three phase system for domestic purpose, commercial purposes, and some extent in the industrial uses. Because the single phase system is more economical than the three phase system, and the power requirement in most of the houses, shops, offices which are small in sizes, which can be easily made by the single phase system. जनरली हम लोग सिंगल फेज पावर सिस्टम का ज़्यादातर यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द थ्री फेज सिस्टम। नाउ दिस सिंगल फेज सिस्टम इज यूज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहाँ पे यूज करते हैं? डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल के लिए भी इसका यूज होता है। It is more economical than the three-phase system, as the most of the houses, shops, and the offices require the single-phase power system. Okay, so which can be easily made by the single-phase system. Now, the single-phase motors are simple in construction, cheap in cost, reliable, and easy to repair and maintain. इसका एडवांटेजेस क्या है सिंगल फेज मोटर के? उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है, उसका कॉस्ट कम है, ऑपरेशन रिलायबल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। अगर उसमें कुछ फॉल्ट आता है दैट कैन बी इजी टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज आल्सो इजी। Due to all these advantages, the single-phase motor finds its application in vacuum cleaner, fans, washing machine, centrifugal pumps, and blowers. Okay. Then what is the मस्त झालंय ना. construction of a single-phase छान. induction motor? Like any other थंड होऊ electrical दे. motor, this single-phase induction motor is also consists of the two main parts. एक है stator, next is rotor. Stator is the stationary part of the induction motor. Stator को क्या करते हैं? सिंगल फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अनलाइक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जैसे होता था, जो थ्री फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को जाता है, सिमिलरली काही सिंगल फेज नव्हतं. में भी क्या होता है? सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 6 करोड़ 73 लाख जो कुल मिला के डोजेज है वो दिए जा चुके हैं। इसका मौजूद है अहमदाबाद के अर्बन हेल्थ सेंटर में। और यहाँ पे आप देखिए जो वैक्सीनेशन का काम है वो लगातार चल रहा है। लोग जो है सुबह से ही लाइन में बैठे हुए हैं कि उनकी बारी आएगी और उनको वैक्सीन मिल जाएगी। लगातार जो बात की जाए तो गुजरात Okay, and rotor क्या कहते हैं? Rotor is a rotating part of the induction motor. Rotor connects the mechanical load to the shaft, and the rotor in the single-phase induction motor is of a square-edged rotor type. The construction of a single-phase induction motor is almost similar to the square-edged three-phase induction motor. But in case of single-phase induction motor, the stator has the two windings instead of a three-phase winding in a three-phase induction motor. ठीक है, रोटर कैसे? अभी ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है? यहाँ पे जो स्टेटर जो रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ द टू वाइंडिंग, मेनली एज मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। बट थ्री फेज में क्या रहता है? थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज वाइंडिंग रहती है स्टेटर की। यहाँ पे क्या रहती है? दो वाइंडिंग रहती है, मेन वाइंडिंग रहती है और एक रहती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, now working for the single phase induction motor. The single phase induction motor is consist of a single phase winding which is mounted on the stator of the motor and cage winding is placed on the rotor. Here the pulsating magnetic field is produced when the stator winding of a single phase induction motor is energized by the single phase supply. Single phase induction motor में क्या होता है? Single phase stator winding रहती है which is mounted on the stator and जो cage winding रहती है which is placed in the rotor. यहाँ पे डायग्राम में शो किया है कि स्टेटर की दो वाइंडिंग्स यहाँ पे शो की है, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, जो ब्लैक वाला जो इनर सर्कल है इट इज द रोटर शाफ्ट, ये रोटर शो कर रहा है, और जो आउटर सर्कल है दैट इज द स्टेटर, और स्टेटर की दो वाइंडिंग शो की है यहाँ पे, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अभी जब हम यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई देंगे स्टेटर वाइंडिंग को, तब यहाँ पे मैग्नेटिक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। व्हाट इज मीन बाय पल्सेटिंग? द वर्ड पल्सेटिंग मीन्स दैट द फील्ड
जो फील्ड जो रहती है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज बिल्ड अप इन द वन डायरेक्शन, then falls to the zero. Again this field builds up in the opposite direction, जो previous डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होती है। ठीक है, सो अंडर दिस कंडीशन जो रोटर रहता है इंडक्शन मोटर का, इट डज नॉट रोटेट एंड हेंस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इट रिक्वायर्स सम स्पेशल स्टार्टिंग मीन्स, यानी इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ स्पेशल स्टार्टिंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, then if the single phase stator winding is excited and the rotor of the motor is rotated by an auxiliary means को starting means से अगर rotate होता है and the starting device is then removed, the motor continues to rotate in the direction in which it is started. अभी ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टार्टिंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके हेल्प से सिंगल फेज स्टेटर को सिंगल फेज स्टेटर एनर्जाइज होगा। ठीक है, देन रोटर जो है, रोटर ऑफ द मोटर इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब जब हमारी मोटर कुछ रेटेड स्पीड अचीव करके मैक्सिमम रेटेड स्पीड अचीव कर लेंगे, उस समय क्या होगा, वो स्टार्टिंग डिवाइस जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वो रिमूव होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मोटर जो है कंटिन्यूसली रोटेट होता है थ्रू द डायरेक्शन इन विच इट इज स्टार्टेड, यानी स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में ये मोटर घूमती थी उसी डायरेक्शन में ये मोटर कंटिन्यूसली रन होती है। जब मोटर मैक्सिमम रेटेड स्पीड अचीव कर लेती है उस समय स्टार्टिंग डिवाइस यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। वन मिनट। आंखों के जरिए समझिए किसको कितने टीके लगे हैं। दरअसल कोविड की कैटेगरी के हिसाब से टीकाकरण का यह अभियान चलाया गया। Now, why single phase induction motor is not self-starting? When the single phase supply is given to the stator of a single phase motor, it produces the pulsating torque. That torque is not the rotating time. Pulsating torque जो है वो rotating time में रहता है. Hence, it could not produce the rotational torque in the rotor or the motor. So, these motors are not the self-starting. ठीक है, अभी इसको मैं यूजिंग डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अच्छा मग ठीक है, देतो अकॉर्डिंग टू दिस मम्मी थ्योरी any alternating इकडे quantity बरं can be resolved into the two rotating तुला काय components वाटतं ना which तुला rotate in दिलं the असतं opposite direction and हे each आहे having the लाईट magnitude बोलायचं as a half of the maximum magnitude of the alternating quantity। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रहती है वो रिजॉल्व होती है दो रोटेटिंग कंपोनेंट में। अब वो दो रोटेटिंग कंपोनेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं एंड all the rotating components having the magnitude half of the maximum magnitude of the alternating quantity। इन alternating quantity का जो total magnitude है उसके half इन दोनों का magnitude रहेगा। ठीक है, so according to the double field revolving theory, consider the two components of the stator flux। अभी यहाँ पे दो component consider करना है stator flux को। ठीक है, each having the magnitude half of the maximum magnitude of the stator flux। ठीक है, अभी जो मेन स्टेटर फ्लक्स है, स्टेटर फ्लक्स के दो कंपोनेंट यहाँ पे हमने कंसिडर करने के लिए कहा है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा दोनों स्टेटर फ्लक्स का वो कितना रहेगा, हाफ ऑफ द टोटल मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर फ्लक्स। ठीक है, टोटल स्टेटर फ्लक्स है उसका हाफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रहेगा इन दोनों कंपोनेंट्स का। ठीक है, नाउ both these components are rotating in opposite म्हणजे direction at the प्रिंट synchronous speed प्रिंटची एक and this कॉपी द्यायची synchronous आहे speed is dependent त्याची on the ओरिजिनल frequency आरसी and the stator poles। आणि अभी ये अदर दोनों ओरिजिनल स्टेटर फ्लक्स के डॉक्युमेंटची जो प्रिंट कंपोनेंट्स है ये द्यायची कैसे रोटेट होते हैं, ऑफिस स्टार्टिंग में मध्ये इट इज नेऊन रोटेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच ट्रान्सपोर्ट ऑफिस अदर मध्ये and at the synchronous speed and this synchronous speed is dependent on the frequency and the number of the stator poles of the induction motor। ठीक है, now ऑफिस मध्ये नेऊन now see this diagram फिगर ए एंड फिगर बी। ठीक है, फिगर ए में आपको क्या दिख रहा डॉक्युमेंट है, नेऊन एट द्या म्हणते स्टार्टिंग कोण इनिशियल करेल कंडीशन में तसं क्या ऑफिस होता है, मध्ये जो स्टेटर के जो दो फ्लक्सेस है, देखो फाइव बी एंड फाइव, दीज आर द टू फ्लक्सेस ऑफ द स्टेटर कंपोनेंट। ठीक है, फाइव बी मीन्स द बैकवर्ड फ्लक्स एंड फाइव मीन्स द फॉरवर्ड फ्लक्स। अभी इन दोनों की डायरेक्शन कैसे दिख रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स जो ते रहेगा वो जीरो रहेगा व्हेरिफिकेशनचा कोड स्टार्टिंग में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है,
नाउ एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी जब मोटर की स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आपको यहाँ पे क्या शो दिख रहा है, आपको ये फर्स्ट वाली डायग्राम देखना है, ठीक है। एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्या दिख रहा है, दोनों जो कंपोनेंट्स जो है फाई बी और फाई एफ, इनकी डायरेक्शन कैसे है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे त्याचं फिर टोटल व्हेरिफिकेशन फ्लक्स क्या 2 मिलेगा, फाई रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा, फाई वन एम। अब ये कैसे मिलेगा, ये दोनों स्टेटर कंपोनेंट्स जो है इनका जो मैग्नीट्यूड है उनको ऐड करके, तो हे फाई एफ झिरो के लिए है फाई वन बॅलन्स एम बाई टू और फाई बी के लिए भी अकाउंटचं फाई वन बँक एम बाई अकाउंट टू है, ओपन करा तो इन म्हणते. दोनों को झिरो ऐड बॅलन्स करने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा फाई वन एम, ठीक है। दाखवा खायचं So the figure shows the stator कोटक flux and बँक. its two झिरो components phi बॅलन्स f and phi b. अकाउंट खोला म्हणजे At the start, काय both the भेटेल components are काही shown भेटत नाही, opposite पण to the आपण each बाकी other. अकाउंट And so the ओपन करतो तर resultant flux त्याच्यात is आपण phi r कितना 1500 है, जमा zero, ठीक करतो है। ना. यहाँ पे देखो याच्यात दोनों आपल्याला फ्लक्स जो झिरो है बॅलन्स राहिलं इनके तरी अकाउंट डायरेक्शन ओपन अपोजिट है, होतं. तो यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स कितना है, जीरो है एट द स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ मोटर। But at the after the 90 degree, as shown in the figure 1b, the two components are rotated in a such a way that both नाही are pointing in the same direction, कांते ठीक है। अभी यहाँ पे देखो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री में क्या आ दिख रहा है, दोनों जो कंपोनेंट है स्टेटर फ्लक्स के उनका डायरेक्शन सेम है, जेवण आहे का, ठीक है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से कायचं अभी काय काय आहे रिजल्टेंट फ्लक्स जेवणात, कितना मिल रहा है, मैक्सिमम रिजल्टेंट फ्लक्स मिल रहा है फाई वन एम। अब ये सगळेच जण कैसे आले आहे मिलेगा, का ये जेवण. दोनों स्टेटर फ्लक्स जो है उनका जो मैग्नीट्यूड है तू तर उनका गटात सम नाही आहे जो ना होगा, पण, ठीक है, इनको हमें ऐड करना है, ठीक है। फाई एफ का फाई मग वन जे एम बाई गटात टू आहे है, तेच फाई बी लोक का करा फाई वन म्हणा. एम बाई टू, दोनों को ऐड करके हमें रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा यहाँ पे फाई वन एम एट ते थीटा गटाचे इक्वल्स टू 90 कार्यक्रम डिग्री, करत आहे म्हणते. ठीक है। सो आफ्टर हा 90 डिग्री द टू components are ते rotated खालची in का a such आई, a way that both are pointing in the same direction. Hence the resultant phi r तर is तिला the त्याशिवाय algebraic आवडत नाही sum ना of the कोणी, magnitude म्हणून of तिला the तू two पाहिजे components. सोबत. So phi r equals to phi 1 m by 2 plus phi 1 m by 2 equals to phi 1 नाही ते m. कसं This राहायचं, is the त्याशिवाय instantaneous आवडत value of नाही the कोणी. stator flux at theta equals to 90 degree. जाऊ दे ना Okay. करायचं. Now this continuous rotation of the two components gives the original alternating stator flux. अभी इन दोनों जो fluxes है उनका continuous rotation यहाँ पे हो रहा है, यह हमें क्या प्रोवाइड करता है, original alternating stator flux. Both these components are rotating in nature and hence it get cut by the rotor conductor. Due to the cutting of fluxes, अभी ये फ्लक्स कट होने के बाद क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर में। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद क्या होता है, रोटर वहाँ पे रोटर में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। Because of that rotor current, it produces the rotor fluxes. ठीक है। Now this rotor fluxes interacts with this stator fluxes, कि जो दो कंपोनेंट है उसके साथ इंटरैक्ट होता है। So this flux interact with the forward component phi f, phi f के साथ जब ये इंटरैक्ट होता है रोटर फ्लक्स, ये प्रोड्यूस क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, से इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है जब रोटर फ्लक्स इंटरैक्ट होता है फॉरवर्ड फ्लक्स के साथ। सिमिलरली जब रोटर फ्लक्स जो है बैकवर्ड फ्लक्स के साथ, बैकवर्ड कंपोनेंट जो है उसके साथ इंटरैक्ट होगा, तो तभी भी वहां पे क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बट इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो कंसिडर करो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क means it is in positive torque and clockwise is the negative torque, ठीक है। So at the time of starting these two torques are equal in magnitude but opposite in direction, क्योंकि ये दोनों स्टेटर फ्लक्स कंपोनेंट जो है उनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो वहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में। पर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा पर टॉर्क डायरेक्शन इज अपोजिट। सो each torque tries to rotate the rotor in its own direction। तो जो phi f और phi b के जो दो सेपरेट टॉर्क्स जो है वो क्या करते हैं, रोटर को अपने अपने डायरेक्शन में रोटेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो दस उसकी वजह से क्या होता है, thus there is a net torque experienced by the rotor is a zero at the time of starting, ठीक है। यानी दोनों अपने अपने डायरेक्शन में ट्राई करते हैं रोटर को घुमाने के लिए, उस समय क्या होता है, रोटर क्या करता है, रोटर जो स्टेडी स्टेट में आ जाता है, ठीक है। रोटर डज नॉट फेस एनी एक्सपीरियंस टॉर्क, ठीक है, इट इज इन अ जीरो position at the time of the starting and hence the single phase induction motor are not the self starting, ठीक है। समझा है ये सभी को? हमने पार कर लिया है। 100 करोड़ डोजेज आज भारत में लगाई जा यस, ये समझा है क्या सभी को? यस कल हमने मॅम. ये
कल हमने ये पढ़ा था पर ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, इस वजह से आपको फिर से आज समझाया है मैंने। ठीक है, तो अभी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, अभी आपको पता चला है कि अभी इसको मोटर को हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कुछ स्टार्टिंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो हमें अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है स्टार्टिंग मेथड्स फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नाउ स्टार्टिंग मेथड्स कौन सी है, एक है स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, दिस आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, उसको स्टार्ट कैसे किया है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर एंड शेडेड पोल मोटर। ठीक है, ये टाइप्स है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। तो हमें यहाँ पे इनका स्टार्टिंग कैसे हुआ है, इनका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल सब हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले हमें पढ़ना है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, नाउ द स्प्लिट फेज मोटर is also known as a resistance start motor. ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। Here it has a single cage rotor. ठीक है, सिंगल केज रोटर रहेगा यहाँ पे एंड इट स्टेटर हैज अ टू वाइंडिंग known as a main winding and starting winding, जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ा, सिमिलरली इनका भी वर्किंग वैसे ही रहेगा। एक सिंगल केज रोटर कंस्ट्रक्शन वैसे ही रहेगा, सिंगल केज रोटर रहेगी। ठीक है, और स्टेटर के दो वाइंडिंग रहेगी, एक रहेगी मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। नाउ both these windings are displaced 90 degrees in a space। अभी ये दोनों जो वाइंडिंग्स है स्टेटर की, इनके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, so the main winding has a very low resistance and a high inductive reactance। अब जो मेन वाइंडिंग रहेगी स्टेटर की, उसका जो रेजिस्टेंस जो रहेगा कम रहेगा और इंडक्टेंस ज्यादा रहेगा। whereas the starting winding जो रहेगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा और इंडक्टेंस कम रहेगा। ठीक है, so split phase motor is also called as the resistance start motor। It consists of a single cage rotor and its stator has the two winding, main winding and starting winding। ये अभी ये देखो, इसकी डायग्राम देखो। दिस इज द डायग्राम फॉर द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग जो है दो पार्ट में डिवाइड है, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, एंड हियर द स्क्विरल केज रोटर इज आल्सो यूज्ड। ठीक है, अगेन हियर सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज आल्सो कनेक्टेड। अभी ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है, तो अभी आप हम जब वर्किंग देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, सो हियर जो मेन वाइंडिंग जो रहता है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे रहता है, लो रहता है। द मेन वाइंडिंग हैविंग द रेजिस्टेंस लो बट इंडक्टेंस इज हाई, while the starting winding it is also called as the auxiliary winding, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है तो रिएक्टेंस कम रहता है। ठीक है, तो सिंगल फेज सप्लाई जब हमने यहाँ पे दिया है तो करंट फ्लो होगा यहाँ से। ठीक है, तो करंट जो होगा मेन वाइंडिंग में से करंट फ्लो, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा फॉर मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। For main winding, current is represented as the IF, and for auxiliary winding या फिर उसको starting winding भी कहते हैं, it is represented as the IA। Okay, now a resistor is connected in a series with the auxiliary winding। ठीक है, यहाँ पे जो auxiliary winding जो है यहाँ पे सीरीज में resistor कनेक्ट किया है। Now the current in these two winding is not equal, as a result the rotating magnetic field is not uniform। ठीक है, अभी यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है ये दोनों वाइंडिंग में से, मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग में से, तो उनका जो करंट जो है वो इक्वल नहीं रहता है। करंट इक्वल नहीं रहता, उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे रोटेटिंग फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, एंड हेंस द स्टार्टिंग टॉर्क इज स्मॉल एंड कितना रहता है, 1.5 to 2 times of the started running torque। ठीक है, इट इज स्मॉल 1.5 to 2 times as compared to the running torque, and at the starting of the motor both the windings are connected in a parallel। तो स्टार्टिंग कंडीशन में ये जो स्टेटर वाइंडिंग जो रहती है वो पैरेलली कनेक्टेड रहती है स्टार्टिंग कंडीशन में। Okay, now as soon as the motor reaches the speed of about 70 to 80% of the synchronous speed। ठीक है, जैसे मोटर की स्पीड 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव करती है,
तो वो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो रहती है, इट इज डिस्कनेक्टेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द सप्लाई मेन्स। ओके, जब हमारी मोटर जो है रोटेट होना स्टार्ट होती है, देन इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस द स्पीड। जब वो 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेती है, तो उस समय क्या होता है, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं हम इसे, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है सप्लाई में से, और हमारी मोटर जो है वो सिर्फ मेन वाइंडिंग को कनेक्ट रहती है एंड इट कंटिन्यूसली रोटेट। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। अभी ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट कैसे होती है? बाय द यूज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, या फिर यहाँ पे हम रिले भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ if the motor are rated about 100 watt or more than 100 watt, the centrifugal switch is used to disconnect the starting winding. And for the smaller rating of the motor, relay is used for disconnecting of the winding. ठीक है, अभी सेंट्रीफ्यूगल स्विच या फिर रिले कब हमें मोटर में लगाना है, उन दोनों का फंक्शन क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर उसे स्टेटर वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं हम, उसे डिस्कनेक्ट करना है हमें मेन सप्लाई में से। कब करना है? जब हमारी मोटर 70, वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है जब हमारी मोटर 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव करती है उस समय। ओके, तो जब मोटर की रेटिंग जो है 100 वैट और उससे ज्यादा रहती है, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है यूज करना है फॉर डिस्कनेक्टिंग द स्टार्टिंग वाइंडिंग। अगर स्मॉलर रेटिंग ऑफ मोटर है यानी 100 वैट से कम है, तो उसके लिए हम लोग रिले यूज करेंगे। ओके, नाउ अभी रिले को कैसे कनेक्ट करना है? फिर रिले इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द मेन वाइंडिंग, and at the starting the heavy current flows in the circuit and the contact of the relay gets closed। ठीक है, तो वो रिले को हमें मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है, और जब स्टार्टिंग में हैवी करंट फ्लो होता है सर्किट में से, तो ये रिले क्या करता है, इट the contact of the relay gets closed. So thus the starting winding is in the circuit, and as the motor attains the predetermined speed, the current in the relay starts decreasing. Therefore, the relay opens and disconnects the auxiliary winding from the supply, and making the motor runs on the main winding only। ठीक है, अभी यहाँ पे रिले का कंस्ट्रक्शन बताया है कि रिले ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कैसे डिस्कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो रिले को जो है मेन, जो हमारी मेन वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है, तो स्टार्टिंग में हैवी इनरश करंट फ्लो होता है, सो the relay contact gets closed in that condition, and thus the starting winding is in the circuit, and as the motor attains the predetermined speed and the current in the relay starts decreasing, so the relay opens and disconnect the auxiliary winding from the supply, and making the motor runs on the main winding only। ठीक है, ये है इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू द स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग इज split into the two type, main winding and auxiliary winding, and single phase rotor is also connected here। Now centrifugal switch is also connected in a here। ठीक है, so as the resistor is connected in a series with the auxiliary winding, the current in the two winding is not equal, as a result the rotating field is not uniform। यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट रहता है। अब दोनों वाइंडिंग जो है सेटर की, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उनमें से जो करंट फ्लो होता है वो इक्वल नहीं रहता है। वो इक्वल नहीं रहता, इस वजह से यहाँ पे जो रोटेटिंग फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क जो रहता है वो स्मॉल रहता है। कितना रहता है? 1.5 to 2 times less as compared to the running torque। At the starting torque of the motor, both the windings are connected in parallel। स्टार्टिंग कंडीशन जब रहती है तो ये दोनों स्टेटर वाइंडिंग जो है, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड रहती है स्टार्टिंग कंडीशन में। अब जैसे मोटर की स्पीड जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती है एंड इट रीचेस टू 70 to 80% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, तब क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है फ्रॉम द सप्लाई मेन्स। ठीक है, अब वो डिस्कनेक्ट कैसे होती है? बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो यहाँ पे कनेक्टेड है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो यहाँ पे कनेक्टेड है उसके हेल्प से ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अभी हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच या फिर रिले से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब यूज करना है, रिले कब यूज करना है? जब हमारी मोटर की रेटिंग 100 वैट या फिर उससे ज्यादा
ज्यादा रहती है उस समय हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करना है फॉर डिस्कनेक्टिंग द स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, अगर 100 वाट से कम रहती है तो हमें उस समय रिले यूज करना है। ठीक है, तो अभी रिले जब यूज करते हैं तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे हम? रिले इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द मेन वाइंडिंग। जो हमारी मेन वाइंडिंग जो है, ठीक है, ये जो हमारी मेन वाइंडिंग है इसके साथ सीरीज में हम रिले को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ at the starting, the heavy current flows in the circuit and the contact of the relay gets closed. Thus, the starting winding is in the circuit, and as the motor attains the predetermined speed, the current in the relay starts decreasing. Therefore, the relay opens and disconnects the auxiliary winding from the supply and making the motor run on the main winding only. जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है हमारी सप्लाई में से तो हमारी जो मोटर जो है वो इट इज रन ओनली ऑन द मेन वाइंडिंग। ठीक है, कब? जब वो 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेती है तब। स्टार्टिंग कंडीशन में दोनों वाइंडिंग्स जो है पैरेलली कनेक्ट रहेंगी और मोटर जो है दोनों वाइंडिंग के हेल्प से रोटेट होंगी। पर सिंक्रोनस स्पीड अचीव करने के बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी और हमारी मोटर जो है कंटिन्यूसली रन करेंगी बट ओनली ऑन द मेन वाइंडिंग। ठीक है, now this is a phasor diagram for the split phase induction If motor. I Now stay the current with in the you, main if I'm winding जो choosing. मेन वाइंडिंग का करंट रिप्रेजेंट किया है बाय IM। तो जो IM जो रहेगा ये लैग रहेगा, इट लैग बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज V ऑलमोस्ट बाय द 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल से ये लैग रहेगा बाय द सप्लाई वोल्टेज IM करंट। ठीक है, और जो IA करंट जो अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे, IA इज द करंट फ्लो इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दैट इज स्टार्टिंग वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज अप्रोक्सीमेटली इन अ फेज विद द सप्लाई वोल्टेज, दैट इज लाइन वोल्टेज। ठीक है, so thus there exists the time difference between the current of these two winding. So this time phase difference is not a 90 degrees but in order of the 30 degrees. So this phase difference is enough to produce the rotating magnetic field. ठीक है, अभी ये करंट में जो फेज डिफरेंस आ रहा है उस दोनों करंट में जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नाउ द टॉर्क स्पीड, दिस इज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक फॉर द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जो रेड वेवफॉर्म जो शो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द मोटर। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या रहता है, मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है पैरेलली कनेक्ट रहती है और जो ब्लू वेवफॉर्म जो क्या शो कर रहा है, मेन वाइंडिंग अलोन, यानी ये रनिंग कंडीशन ऑफ मोटर शो कर रहा है। यानी जब हमारी मोटर जो है 75 to 80% सिंक्रोनस स्पीड अचीव करती है उस समय क्या होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है और हमारी जो मोटर जो है मेन वाइंडिंग के ऊपर ही रोटेट होती है। ठीक है, ये है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। हियर N0 is the point at which the centrifugal switch is operated, and thus the starting torque of the resistance start motor is about 1.5 times of the full load torque, and the maximum torque कितना रहता है, 2.5 times of the full load torque at about 75% of the synchronous speed, and the starting current of the motor is high about 7.7 to 8 times of the full load value. अभी यहाँ पे ये बताया है कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का स्टार्टिंग करंट जो है वो कितना हाई रहता है एज कम्पेयर टू द फुल लोड कंडीशन ऑफ द मोटर। ठीक है, नाउ द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर डायरेक्शन कैन बी द चेंज। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, बाय रिवर्सिंग द लाइन कनेक्शन ऑफ आइदर मेन वाइंडिंग और दी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमने पढ़ा है कि अगर हमको इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम स्टेटर वाइंडिंग जो है RYB है, किसी दो वाइंडिंग को हम रिवर्स कर देते हैं उनका कनेक्शन। अगर RYB कनेक्शन है तो हमें उसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है तो या फिर हम उसका फेज सीक्वेंस कैसे चेंज करते हैं, RBY करते हैं या फिर YBR करते हैं। सिमिलरली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी हम डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। तो हमारी जो स्टेटर वाइंडिंग जो है मेन वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है उन दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग को हमें क्या करना है, उसका कनेक्शन चेंज करना है। ठीक है, सो आइदर चेंजिंग द मेन or the starting winding, the reversal of the single split phase induction motor is possible। ठीक है, और ये कब करना है, reversal of the motor is possible at the standstill condition only। ठीक है, now what is the application of split phase induction motor? It is used in the washing machine, air conditioning fans,
Motors are used na mixer grinder, floor polishers, then blowers, centrifugal pumps, drilling and lathe machines. यहाँ पे स्प्लिट इंडक्शन मोटर यूज होता है. एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कहाँ पे यूज होता है? वॉशिंग मशीन में यूज होता है, एयर कंडीशनिंग फैंस में यूज होता है, मिक्सर ग्राइंडर में यूज होता है, फ्लोर पॉलिशर्स में यूज होता है, ब्लोअर्स में यूज होता है, सेंट्रिफुगल पंप्स में यूज होता है, ड्रिलिंग एंड लेथ मशीन्स में यूज होता है. ठीक है. तो ये था स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस what it is also called as the resistance start motor. समझा ये सभी को स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर? यस, सभी को समझा ये? यस मैम. ओके. तो मैं आज आपका इतना ही ले सकती हूँ क्योंकि कुछ काम है, ऑफिशियल काम है, इस वजह से. ठीक है. तो बाकी जो है ये हम लोग कल के लेक्चर में कवर करेंगे. कल जो है आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जो रिमेनिंग मोटर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अभी मुझे अटेंडेंस दे दो आप लोग. अटेंडेंस से पहले ये बताने कि आपका जो सेशनल जो है 27 से स्टार्ट होने वाला है. तो वो जो सेशनल जो है एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों रहेगा. यानी आपको एमसीक्यू का भी पेपर देना है और डिस्क्रिप्टिव. ठीक है. रिटर्न पेपर भी लिखना है आप सभी को. वैसे उसके बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर एचओडी सर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ. तो आपको जो है एमसीक्यू भी देना है. यानी जैसे लास्ट टाइम आपका हुआ था. ठीक है. एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव जैसा सेशनल सिमिलरली वैसे ही होगा ये वाला सेशनल भी. तो एमसीक्यू देना है और उसके साथ तुरंत उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा वही सब्जेक्ट का. ठीक है. ओके मैम. हाँ, चलो अभी मुझे अटेंडेंस Okay, दे ma'am. दो.